Hello. Hello. हेलो, आवाज आ रही? Hello. हाँ 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 हेलो हेलो यस हेलो। हाँ Yes, sir. हाँ आप यस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास है ना although you know the topic has been already sent to you. What is the topics? What is the today topics? What is the topic of today class? You know? Hello? 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 हेलो सर। Are you hear me? यस सर। Yes, sir. So what is the today topics of class? Sperm metabolism, sir. Right. Now I am going to show the slides. Now you see, Anna, is it visible? Yes, sir. Okay. Oh, I want to know or your views. How much you know about the metabolism of sperm? Have you read in undergraduation period? What is the metabolism? I mean to say, what does it mean of metabolism of spermatozoa? Actually, what does it mean सर of फंक्शन से स्पर्मटोजोआ का फंक्शन है, कैसे वो उसका एनर्जी सब कैसे मिलता है सर? or other factor do you think if it is significant or if it is relevant to that topics? Whatever you know, you tell me. Whether any relevant topics, any relevant things with these topics of metabolisms. Do you know? If you know, and 1, 2, 4 point and 1, 2, 3 or 3 points. So tell me. One, two or 3 points if you'd like. If you know. बोलिए किससे? कोई मैडम थी, मैडम देती थी डॉगी को। हाँ. तो इंजेक्शन तो सर लग गया है, लेकिन दवाई नहीं कर रहा है, तो फिर खाली उल्टी कर देता है, 3-4 घंटा बैठ के। कौन सा दवा है? खतपुर Up now you see the details. Why metabolism need? Metabolism, why this is need? Why this is needed? Why do we need it for myself or for yourself? Metabolism. Metabolism for the what? किस लिए metabolism चाहिए? एनर्जी किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए सर। हाँ. What are the things in which energy is needed? When we start to move, it needs energy. When we start to eat, we need energy. When we start to inhalation, need energy. When it starts to urinate, we need energy. So in all things, we need energy. In the same way, similarly, spermatozoa also need energy for their normal function, like for motility. If the spermatozoa have no any motility, it means that animal is not having any energy for the motility. So motility means metabolism. If anybody is having or any organism is having metabolism, it means that the organism is getting somewhat getting energy from somewhere, and this energy is a energy synthesis is a very vast methodology. It's a very difficult, it's a very deep methodology. You cannot define it as in a single line or 1 or 2 class. Energy तो जो हम लोग खाते हैं उसे मिलता है, but spermatozoa also needs some energy. Energy provides energy. Energy produced energy. And energy produced energy. What does it mean for the spermatozoa? You know spermatozoa, what does it actually what spermatozoa what does it needs for energy? For getting energy, the spermatozoa, what does it needs?
ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। For ATP production, sir. For ATP production, how that ATP is produced? कैसे बोले कि दवा हटाने? Glycolysis. बस ये दवा दिलवाए हैं, Glycolysis. और जो भी दवा दे रहे हैं ना, दवा दे रहे हैं, Very खाना good. उल्टी करते रहिए, Glycolysis. और And another one is बस एक को ब्रेड दूध के साथ Respiration, sir. respiration. दवा दे, एक ब्रेड है, एक दूध। Yes, sir. Respiration is a part of metabolism. दवा भी डर से नहीं दे रहे हैं कि देंगे उल्टी Yes, करके sir. खाना जो खाएंगे। Part of metabolism. 4 दिन से तो इसी कर रही है, कुछ भी खिलाते रहे, दवा तो उल्टी। हमारे पास जो है, हम जब खाते हैं खाना, जब हम when we eat foods, we get some substrate. Likewise, spermatozoa जो gets एक खा रहे substrates. ना, जो प्रीमेचर चल रही है, थोड़ा सा वो क्या कहता है, म्यूट कर लो अपनी मोबाइल। लड़खड़ा रही चल रही। A very noise condition is coming from Deep Sikha mobiles. So you should mute your mobiles so that noise cannot come. टैबलेट दिए हैं तो उल्टी कर, Dr. Arun, mute your mobiles. दिए सिरप दिए तो And some noise is coming from your mobiles. एक इंजेक्शन So था, I would like इंजेक्शन to भरे, please ये switch तो mute your mobiles. और ये 2-4 महीने पहले ले जाकर दिखाए थे तो उल्टी कर रही थी ना, तो बोले थे कि दवा खिला के स्प्रे मार दीजिए, तो ये So परसों मारे spermatozoa is a थे। dynamic structure. Spermatozoa is a dynamic structure. The sperm require continuous supply of ATP, maintain the motility in the male and female reproductive tract. The sperm require continuous supply of ATP to maintain motility in the male and female reproductive. During epidermal maturation or later in the reproductive tract, when they undergo capacitation and hyperactivation, all this activity ये डॉक्टर जो need लिखे energy. थे ना, And this आपको अभी energy मिलेंगे। is ये very जहाँ very रजिस्ट्रेशन important पूजा for करवाते हैं, motility of the उससे sperm. थोड़ा और आगे चले जाइए। तो मैडम का नाम बता दीजिए। मैडम अभी नहीं मिलेंगे, मैडम थोड़ी लिखी Dr. है। Arun, कोई मैडम ही Dr. थी, Arun. वो देखी थी। देखी होगी लेकिन दवा वो नहीं लिखी है। तो सर का नाम भी बता दीजिए तो। Dr. Arun. हाँ, सेन गुप्ता सर। क्या? सेन गुप्ता सर। सेन गुप्ता सर। हाँ। Dr. Arun. मैंने बोला ये जो बिल्डिंग है ना, Dr. Arun, do you hear me? इधर रास्ता चले जाइएगा। उसमें नहीं उसमें नहीं, हाँ। सिर्फ उसके उधर है। ठीक है। Dr. पूछिएगा ना, Arun, जैसे do ये you hear यहाँ पर me? रजिस्ट्रेशन करवाता है, सीधे चले जाइए। ठीक है। थोड़ा दूर जाने के बाद उधर देखिएगा तो एक बिल्डिंग होगा, उसी बिल्डिंग में। नए बिल्डिंग में क्या बैठ रहे हैं? पुराने वाला? नहीं पुराने में। पुराने वाला, पहले वाला में ना। Dr. Arun, a voice is coming from your mobile. Please mute your mobile. I am asking to you, Dr. Arun. Are you listening? Are you listening? Hello. हेलो। यस सर। तुम्हारे मोबाइल से नॉइस आता है बहुत, डिस्कस, थोड़ा सा म्यूट कर लिया करो। ठीक। हाँ ठीक है, ओके। सो spermatozoa is a dynamic structure. The sperm require continuous supply of ATP, adenosine triphosphate, maintain the motility in the male and female reproductive tract. During epididymal maturation, later in the female reproductive tract, when they undergo capacitation and hyperactivation. In all activities, spermatozoa need energy. The energy, हम लोग को energy कैसे मिलता है ये बताओ? How do we get energy? How do we get energy? How? Do you think? How do we get energy? ATP के थ्रू सर। ATP. So we, whenever you will be asked to how do we get energy, you will tell ATP. ATP, from where ATP is coming? Through respiration sir. Respirations. Respiration ATP is coming. Glycolysis, sir. The food we eat, it become a small particles, not a glucose, and that glucose is going to metabolize. Glycolysis respiration का ही part है। तो कहने का मतलब glycolysis is also a part of respiration, है ना? तो glycolysis कहाँ होता है? Where this glycolysis? साइटोप्लाज्म में सर। साइटोप्लाज्म में होता है।
तो स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी कहां से मिलता है? ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है या साइटोप्लाज्म से मिलता है? ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। जैसे कुछ एटीपी सर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से बनता है, कुछ एटीपी सर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मिलता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड साइकिल से, और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिलता है। ये सर उससे मिलता है। ऑक्सीटो और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से मिलता है ना? डू यू थिंक सो? और किससे मिलता है? ग्लाइकोलाइसिस से और TCA साइकिल से मिलता है एनर्जी। यस सर। तो स्पर्म जो एनर्जी लेता है, ये कैसे पता चला? स्पर्म में एनर्जी किस माध्यम से लेता है? आइदर TCA साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। कौन से साइकिल से एनर्जी आती है स्पर्म में? If we think the spermatozoa is having motile, it means that animal is the sperm is having some energy. That's why sperm is having motile natures or is propelling their tails. माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होता है सर, मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी सर माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा, क्योंकि TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ETS भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो स्पर्म तो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? TCA साइकिल होता है। इट इज TCA साइकिल भी होता है सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उसी में होता है। ओके ओके ओके। सो फॉर ऑल दिस TCA साइकिल वी नीड वेदर ऑक्सीजन और नॉट? इट नीड ऑक्सीजन और नॉट? यस सर। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ऑक्सीजन, और इन ग्लाइकोलाइसिस वी नीड एनर्जी, वी नीड, डू वी नीड ऑक्सीजन और नॉट इन ग्लाइकोलाइसिस? नो सर, ग्लाइकोलाइसिस में जरूरत नहीं है सर। तो फिर कैसे होगा? कब एनारोबिक कंडीशन होता है क्या स्पर्म में? एनारोबिक कंडीशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी चाहिए होगा। तो डू यू थिंक दैट स्पर्म इज एवर हैपी इन ग्लाइकोलाइसिस इन एनारोबिक कंडीशन? नो सर। What is anaerobic conditions? What do you mean by anaerobic एनारोबिक conditions? ही होता है, हाँ, ऑलवेज एनारोबिक ही कंडीशन होता है किसका? स्पर्म का सर। Always anaerobic condition होता है। कैसे? How do you say? यूरिनोजेनेट, ये सर जब स्टेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह एपिडिडाइमिस से जब पास होता है, वहां भी उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है सर। जब यूटेरस में जाता है तो वहां भी ऑक्सीजन नहीं होता उसके पास। इसका मतलब थ्रू आउट ये एनारोबिक कंडीशन होता है? यस सर। एनारोबिक कंडीशन में एनर्जी कितनी मिलती है? कितने एटीपी का निर्माण बहुत होता कम है? सर। अब इतना कम एनर्जी में कैसे भैया काम चलेगा उसका? कैसे काम चलेगा इतना कम एनर्जी में? You know it, very short amount of ATP is produced by the glycolysis. How a sperm can survive in a very least amount of ATP? है ना? Did it come in your mind ever? कभी तुम्हारे ब्रेन में, दिमाग में ऐसा आया? So let's talk. आगे देखते हैं। पाथवे ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज स्पर्मेटोजोआ क्या है? एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, बोथ आर respiration, part of respiration, anaerobic and aerobic respiration. ATP produced by oxidative phosphorylation and glycolysis. ये दो मेथड है by which ATP is produced. Now ATP production site in spermatozoa are machinery for oxidative phosphorylations, glycolytic enzyme tethered to the fibrous sheath of the principal piece. These are the scientists who are who are attached with this, who are involved in this sperm metabolisms. So here you see, where does the sperm get all energy? The site is this. This is the mitochondrial helix. These all are the mitochondrial helix. कितना है? ये सारे रिंग हैं, इस सभी जो mitochondrial helix है, इसी में एनर्जी रहता है, यहीं से ज्यादा मिलता है। So we should discuss site of ATP production via the oxidative phosphorylation. From where site of ATP production? Mitochondria refer to the powerhouse of cell.
पढ़े होगे आईएससी में, energy Yes, currency sir. of the cell is, powerhouse of the cell is mitochondria. So occupy the substantial portion of total cellular volume is 15% to 22%. Mature spermatozoa contain approx that cristae are principal site of OXPHOS and ATP generations. As per mitochondria process cytochromes, hexokines, subunit cytochrome oxidase. These are all the scientists who are involved in this activity. Site of ATP production via glycolysis. Head and principal piece are devoid of respiratory enzymes. Head और principal piece are devoid of these, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि हेड में और प्रिंसिपल पीस में एनर्जी रेस्पिरेटरी एंजाइम डिवाइड होता है. Several glycolytic enzymes have been found in fibrous sheath of the spermatozoa, which include hexokinase, phosphoglucokinase, phosphofructose kinase, glyceraldehyde. These are the enzymes involved in the production of energy, ATP, hexokinase. So come to this point, energy substrates. Energy substrates क्या है? What are the substrates by which the sperm gets energy? Glucose, mannose, fructose, and sorbitols. Non-glycosable substance, pyruvate, lactate, and hydroburate. Glucose, mannose, fructose, sorbitol are a high percentage of motile sperm and support the increase in phosphorylation. Fructose and sorbitol does not support the hyperactivation. Bull sperm prefer glucose over the fructose. This is the very, very important line you see here. Glucose sperm prefer glucose over the fructose. But here one thing is very important. The sperm get their energy from fructose, but sperms prefer glucose over the fructose. In a testis or in a genital tract, the sperm gets its energy through the fructose, not by the glucose. But sperm prefer to use glucose over the fructose. This is very, very important. So these are the glucose, these are the carbohydrates are involved with the energy substrates. Pyruvate, lactate, and hydroxylase. These are the things. So come here, non-glycosable substrates by which the sperm gets energy, maintain the motility with only low level of tyrosine phosphorylation, hyperactivation. Pyruvate and lactates able to sustain. Pyruvate क्या होता है? Lactate कब बनता है? When do you heard what do you know about the pyruvate or lactate? What does it eat? क्या है? What does it? Pyruvate In क्या the है? product of glycolysis is pyruvate, sir. Very good, very intelligent. Pyruvate or lactates able to sustain high ATP levels. Citrate not able. Citrate is not permeable to mitochondria, so citrate substrate is not used for the energy substrates. Need to be converted into the malate with the use of ATP to be able to enter the citric acid cycle. Glycolysis provide less efficient but very high throughput production of ATP locally down and length of the principal piece, not at yield. 2 molecular ATP per molecule of glucose. Glucosable substance must be able to pass through the plasma membrane of the flagella. In the flagella of the marine substrate, glucose 3 is primary facilitator. In bovine sperm, uptake of mediated by glucose. These are the molecules are involved for the glycolysis. And you see, you have already know since your undergraduate periods how the glycolysis is going to be occur. So you see here how this glucose is going to convert into the lactate. This is the entire process by which animal or the sperm gets energy through the glycolysis pathway. How many numbers of ATP is produced in glycolysis? Or how many numbers of ATP is consumed in a glycolysis? Do you remember? 10 ATP प्रोड्यूस होता है सर, जिसमें 2 कंज्यूम हो जाता है. और टोटल 8 ATP है ना. Yes, और इन इसके बाद फिर आ जाता है ये आपका जो है क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल तो अलग है, उसमें NADP वगैरह बनता है. ये क्रेब्स साइकिल का पाथवे जिसको TCA साइकिल कहते हैं, थ्रू विच how many number of ATP is synthesized in a TCA cycle? में टोटल 24 ATP बनता है सर, 24. अच्छा 24 और 8 बना ग्लाइकोलाइसिस में. यस सर. तो कितना हो गया?
32 सर। 32। और इसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ईटीटी, इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन 6 ट्रांसपोर्ट ATP सर सिस्टम। लिंक रिएक्शन भी बनता है सर, 6 ATP लिंक रिएक्शन। हाँ 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 हाँ। तो जो सर ग्लाइकोलाइसिस को सर जो TCA साइकिल से जोड़ता है उसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, उसमें 6 ATP बनता है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, हेड अ प्रिंसिपल पीस, दिस थ्रू विच this by glycolysis this is get energy is getting by this glycolysis, this involvement relevant to this glycolysis। मोटिलिटी जो मिलता है वो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा मिलता है, कैपेसिटेशन, एक्रोजोम रिएक्शन। बट मीट पीस जो है ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करता है, दोनों सबका अलग अलग है, ठीक है। ये जो है ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ होता है, इपिडिडमिस में होता है रेस्पिरेशन, इपिडिडमिस में रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा सर। राइट, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ओके। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या उसमें? नहीं होता। यस सर। नहीं। स्पर्म को एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, फ्रुक्टोज अगर वहां होगा, दो टेस्टिकुलर फ्लूइड्स हैं उसमें अगर फ्रुक्टोज हैं तो वहां से एनर्जी मिलेगी उसको। ग्लूकोज को भी सर कन्वर्ट कर लेता है फ्रुक्टोज में, ग्लाइकोलाइसिस में सर पहला स्टेप ही यही है सर, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज को कन्वर्ट। तो हमारे कहने का मतलब है कि फ्रुक्टोज इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, सो स्पर्म इज फाउंड नॉन मोटाइल इन एपिडिडमिस। फॉलो माय पॉइंट, क्या हमने कहा आप समझे? यस सर। जब एपिडिडमिस को काट के देखा गया तो जो स्पर्म उसमें था, those sperm was non-motiles, but when it was cut from after the epididymis or from after the seminal vesicles, it was found very motiles, sperm was motiles, but in epididymis the sperm was not motile. Due to reason is that the sperm was not having any fructose, so sperm was not motiles. It is proved, it is fact. फ्रुक्टोज कहां से निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट है सबस्ट्रेट कहां से निकलता है, वो सेमिनल वेसिकल से निकलता है, सेमिनल वेसिकल से निकलते हैं। सेमिनल वेसिकल से निकलते हैं। सो हमारा कहने का मतलब है कि स्पर्म आज अगर ऐसे पढ़ते चलते हैं पहले, एविडेंस फॉर फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज but not lactate or pyruvate is required for the protein tyrosine phosphorylation event observed during the process of sperm capacitation. Pyruvate is required. Sperm capacitation, inhibiting the electron transfer or coupling the oxidative respirations. These are the scientists who are involved in ATP produced by the meat piece of mitochondria. Large amount of ATP are required along with the full length of motile flagellum. मेजरमेंट ऑफ द मेटाबॉलिज्म्स, कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सब चीजें रिसर्च की चीजें हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ बुल स्पर्मेटोजोआ, दीज आर द टेम्परेचर, सेल कंसंट्रेशन, इनऑर्गेनिक फास्फोरस, पीएच, कैटायंस, एनायंस, ऑस्मोटिक प्रेशर, हार्मोन, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, these all factors influencing the metabolic rate of the spermatozoa. If temperature is gone above or below, it affects the metabolism of spermatozoa. You know, the sperm is preserved due by the different mode of temperatures, and if temperature of the sperm is going to be deep or down, it sees the metabolism activity of spermatozoa through which sperm is preserved. अगर आप पढ़ेंगे sperm preservation at ambient temperature, what is the principle behind this preservation? sperm का preservation जो है क्या डीप फ्रीजन सीमेन होता है, लिक्विड सीमेन होता है जो रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर। इसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर, इट मींस द रूम टेम्परेचर और यू कैन से द नॉर्मल टेम्परेचर। हाउ डू वी कीप दिस प्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्म एट रूम टेम्परेचर? नो,
It is by lowering the temperature, we can preserve the sperm. So conclusion is what? Glycolysis provides less efficient but very high throughput production of ATP locally down the length of the principal phase. Mitochondrial respiration and glycolysis can compensate for each other, but they do not have obligatory role in maintaining sperm ATP production and sperm motility. This is the very, very important conclusion. Do you know, sperm mitochondria, it is not obligatory for role in maintaining the sperm ATP productions. Right? वैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, आज स्पर्म का प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। क्यों इस पे साइंटिस्ट जो है प्रिजर्व करने के लिए, मतलब ऐसा क्या था, what was like that is responsible for the preservation of a sperm and for the use of artificial insemination? No, क्या ऐसा है? हाँ बताइए। हाँ हम ही हैं, क्या कुछ कहना है क्या? आइए बताएं। काफी समय के बाद आए हैं इसीलिए अभी तो क्लास में ले रहा हूँ, लेकिन आप 5 मिनट के लिए दे सकते हैं। ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो फिर अभी तो 5 बजे के बाद मुलाकात होगी, तो दे दीजिए, क्योंकि अभी क्लास चल रही है। हाँ इसलिए 5 मिनट दे दिए, फिर हमको फुर्सत मिलेगी, इवनिंग हो जाती है। सो स्पर्म अगर अवेलेबल है और हम यूज अगर कर रहे हैं आर्टिफिशियल, इसका रीजन है क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्चुअली ये सक्सेसफुल है तभी जब इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होने की वजह से ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सक्सेसफुल हुआ। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि तुम जानते हो कि स्पर्म को स्ट्रॉ में रखते हैं, हम स्पर्म को प्रिजर्व कर करके हम फ्रिज में रखते हैं, तो वहां ऑक्सीजन तो नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो एनर्जी कहाँ से मिलता है स्पर्म? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में भी एनर्जी मिलता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, थ्रू विच स्पर्म गेट्स एनर्जी। बताइए। ठीक है, कार्डिला से ना जी, कैडिला फार्मा ना, इसका लेप्टोनॉल आता है, अगर शायद आप जानते हैं। कैडिला ना, कैडिला पहले तो जायडस थी ना, अलग हो गया क्या? कैडिला अभी भी कैडिला है, वो जाइडस इज नॉट कैडिला, दे आर जाइडस, दे आर यूजिंग द वर्ड कैडिला। ह्यूमन में एसी लोग जानते होंगे सर। हाँ कैडिला का है ये, वही कैडिला है। अच्छा, वो ओरिजिनल कैडिला है। वो जो भी जाइडस जो भी बोलते हो अलग बात है। तो मैं एज ए बताइए भी हूँ, और अभी बिहार में हमने करीब 3.5 साल के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया है। बेसिकली बेस्ड एट अहमदाबाद, अभी यहीं पे देख रहा हूँ बिहार और झारखंड। अमृत हमारी एबीएम है, तो लड़का हमारा छुट्टी पे है। अच्छा अच्छा, ये सर हमारी प्रोडक्ट रेंज है सर। वेटनोवा इज द एनिमल हेल्थ डिवीजन ऑफ कैडिला। अच्छा अच्छा, सीपीएल वेटनोवा इज कैडिला फार्मास्यूटिकल्स। नहीं वो तो हम कैडिला को जानते हैं बहुत दिन से। कैडिला फार्मा पहले जायडस के साथ ही कैडिला 92 के फॉर्म सर। जायडस इज नॉट कैडिला, मैं यही आपको कह रहा हूँ सर। कैडिला फार्मास्यूटिकल इज कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जायडस जो है बेसिकली दे आर सारा भाई ग्रुप। कभी कैडिला का पार्ट हुआ करते थे, वो वहां से टूटे, सारा भाई मिले, सारा भाई पीरामल में मिला, पीरामल दूसरे में मिला। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास, ये प्रोडक्ट एंटीबायोटिक ही होंगे? एंटीबायोटिक है हमारे पास, सपोर्टिव थेरेपी है, डेक्सासोन है, डेक्सामेथासोन, वराविटामिन ई, सेलेनियम, रेफ्रेनॉल आता है ऊपर जो है। उसके बाद हमारा फ्लूमिक्सिन, मेग्लोमाइन आता है, हीमप हमारा आता है, हीमप बेड। ठीक है, एक मल्टीफंक्शनल हेमेटोनिक। तो आपसे सर कौन सा टाइम समय ऐसा रहेगा जब थोड़ा सा टाइम मिल सके? आप कल आइए, कल संडे है तो आप मंडे को आइए। मैं सर आपको 9 तारीख को मिलूं सर? कोई दिक्कत नहीं, 9 तारीख सैटरडे ऑफ तो नहीं होता? 9 तारीख सेकंड सैटरडे तो ऑफ रहता है। आप कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। 9 तारीख पड़ता है सेकंड सैटरडे ना? 9 सैटरडे। ठीक है, तो 8-11 तो हमारा बीजी एग्जाम है बच्चों का, उसको लेना है। आपने सर कहाँ से किया था? क्या चीज? मतलब हमने यूजी यहीं से किया है, पीजी भी मैं यहाँ से किया हूँ।
पीएचडी हमने IVRI से किया है किस ईयर में? 2017 में। 17 हाँ 17 17 में। हाँ 17 17 में ज्वाइन किया था नहीं 14 में ज्वाइन किए, 17 में कंप्लीट किया मैंने। आई एम आल्सो ए पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम पत्थर। अच्छा 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 मैं एनिमल न्यूट्रिशन से हूं। अच्छा आप I वेटनरियन did my BSc ADS, then I did my MSc animal। अच्छा 86 to 92 था मैं वहाँ पे। ओ सर और बरेली भी मैं रहा तो आपके 2008 से 10 के समय था। अच्छा 8 से 10 में थे ना। अच्छा अच्छा तो आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं ज्वाइन किया? नहीं सर उस समय क्या बोलूं, उस समय मैं स्पोर्ट्स की कई टीमों में भी था। अच्छा 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 और उस समय माहौल ऐसा था कि प्राइवेट जॉब में अच्छा, आई अच्छा। स्टार्टेड माय करियर विद फाइजर। आपका नाम है शलभ कुमार सिन्हा। बेसिकली अच्छा, लखनऊ से हूं मैं। आप वेटनेरियन हैं, ये एग्रीकल्चर से किया आपने? बट न्यूट्रिशन से तो किया ना? डॉक्टर जीडी सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी सबसे पहले जब यहाँ पे आया। हाँ तो उनसे पता चला, फिर कई लोगों से डॉक्टर जीडी सिंह हैं बगल में है। तो उनसे मुलाकात हुई थी। फिर मैं आज आया था तो अभी डॉक्टर शैलेश से मिला, डॉक्टर से गुप्ता से मिला। अच्छा फिर अच्छा आपके बारे में उन्होंने बताया। ठीक। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। अब अभी तो आप क्लास ले रहे हैं इसलिए ना ठीक है, अपना नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। ठीक थैंक यू। फोन नंबर सर आपका मिल पाएगा? फोन नंबर है 8340। तो मैं आपको कॉल करके आऊंगा जिस दिन आना होगा, एक दिन पहले पूछ लूंगा कि आप क्या नंबर सर? 8340 जी 58 86 86 25। जीडी सिंह टहल रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है सलभ जी। डॉक्टर अंकेश कुमार AN KESH। डिपार्टमेंट ऑफ सर मेडिसिन रिप्रोडक्शन। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, डॉक्टर अरुण, डू यू हियर मी? यस सर। हाँ, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के वजह से ही जब ये पता चला कि स्पर्म एनारोबिक कंडीशन में भी रहता है, तभी ये स्पर्म जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रिजर्वेशन स्टार्ट किया। क्योंकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता तो प्रिजर्वेशन बहुत मुश्किल था स्पर्म का, क्योंकि एनारोबिक क्रिया होने की वजह से अगर हम एनारोबिक कंडीशन भी देते हैं प्रिजर्व कर करके, स्पर्म लाइव रहता है। रीजन इसका यही है। समझ रहे हो बात को? यस सर। हाँ सो आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके ठीक है सर। ओके ठीक। ठीक।